Hello friends, Marshall Devashish Mahapatra, founder of EdStar. Welcome to my education YouTube channel. So here we are going to today discuss about the education system of India. Listen guys, in the today's world we all knew that what the value and what is the status of our educational level and the education system. What is the education system? Everyone just slames the government or the organizing body about the system, the current system, but none of us wants to know that what is the main factor behind it, what is the facts behind it. So today we are going to discuss about all the facts regarding the educational system. This video is going to be in a series. First we will going to discuss about the school education, then higher education, and then after the tertiary education, which is known as the graduation level education. So here I have on board Subhranshu Shekhar Sau, who is the CEO of EdStar, and I have Somnath Achari, who is HR and also runs a YouTube channel known as Triplicate Film. So, welcome aboard, Somnath and Subhranshu. Hi, So, Devashish. hello. Yeah, Afternoon. good afternoon, guys. So, Subhranshu, Yep. I would just like to start from you. What is your means a general picture in your mind when someone Yes. says that education system of India? आप क्या समझते क्या आप उससे? Please. एक स्टेबल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें काफी बदलाव की जरूरी है। जी. Okay. यही है मेरा वन लाइन Okay. पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो यही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक स्टेबल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें काफी बदलाव जरूरी है और बहुत कुछ चीज अपने आप में ही बदलना पड़ेगा। Okay. So सोमनाथ, आप क्या बोलेंगे अगर कोई अगर बोले Uh, कि एजुकेशन सिस्टम, तो आपका क्या कहना है उसके हिसाब से? what do I feel is day by day the education system is falling down. Okay. It might be in the quality or it might be in the things that to be learned by the students or something, because they are just focused on a single thing, and that's money. Education system nowadays is more over of just like a business, not about the education and all. So there are lots of changes that the government has to take care about, and these are the things that should be implemented. Then I guess in the further years education system might be in a good position from now. ओके, सो काफी अच्छा ये इंट्रोडक्शन भी हमें मिला। तो सोमनाथ, मैं आपसे ही पहले शुरू करना चाहूंगा, एज आप आज पब्लिक डोमेन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो मेरे को आप जरा Yep. बताइए एक रफ पिक्चर कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी शुभ्रांशु ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम स्टेबल है, बट आपको लगता है कि ये स्टेबल नहीं है एंड इसमें और भी सुधार लाना जरूरी है, तो क्या आप बता सकते हैं मतलब आपको क्यों ऐसा रीजन आपको लगता है? हाँ, इसके लिए एक सिंपल आंसर है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम अ केवी स्कूल, राइट? केवी, एंड after that I have completed my BTech in mechanical engineering. So या most of the time what I see people, the colleges or schools and all, बस बच्चों को मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ या इसी में फोकस करते जा रहे हैं, not ओके about something lateral thinking something new or innovative, and they're just killing the talent of the kids. This ओके should not be in the education system, what I feel. And apart from that, the teachers, most probably no teacher has the perfect idea of what they are teaching. So somewhere I feel that the lack of education of the teachers and the way they are trying to teach the students, it's something that's day by day it's falling. So that's what I feel. ओके तो सोमनाथ, ओके फाइन। तो शुभ्रांशु, Yeah. आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम स्टेबल है, तो मैं पहले आता हूँ स्कूल एजुकेशन के ऊपर। तो जैसा सोमनाथ ने बोला है, जो पॉइंट्स रखे हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि मतलब कि स्कूल एजुकेशन में ही मतलब इसका एक इम्पैक्ट रहता है कि जो जो फर्दर जो एजुकेशन सिस्टम से उसके ऊपर कुछ एक इफेक्ट, मतलब कुछ एक इफेक्ट आता है? आपको क्या लगता है? जी, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? ओके, सो शुभ्रांशु,
जैसा आपने सुना कि यस। सोमनाथ ने जिस तरीके से बताया कि मतलब कि एजुकेशन में इतना जो भी मतलब प्रॉब्लम है, इश्यूज है, एंड आप बोल रहे हो कि स्टेबल है। तो मैं अभी आता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता है कि इन सबका इफेक्ट जो है वो एक स्कूल एजुकेशन की वजह से हो रहा है? मतलब स्कूल एजुकेशन उस पॉइंट का नहीं है इसीलिए? देखिए, मेरी बात जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? जी, जी, जी। हम्म। तो जहाँ तक मेरी समझ है, जैसा सोमनाथ ने, मेरे दोस्त सोमनाथ ने बताया कि जो एजुकेशन है वो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है। मतलब बंदा जो है या तो मैथ्स में जाना चाहता है या तो साइंस में जाना चाहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सोमनाथ, मैं ओके। सही बोल रहा हूँ? या हाँ। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि ये देखिए, ये जो जैसा सोमनाथ ने कहा, जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है, वो हमारा परसेप्शन है इन पब्लिक डोमेन। परसेप्शन ऐसा है कि हम जब अपने पड़ोस वाले फैमिली के बच्चे को पूछते हैं, बेटा तुम क्या पढ़ाई करोगे, हर कोई बोलता है मैं प्लस टू में साइंस लूंगा या इंजीनियरिंग करूंगा। बट द रियलिटी इज, पिछले एक दशक से एजुकेशन की क्वालिटी में डिग्रेडेशन हुई है। 2010 तक जो हालत ये था कि एजुकेशन एक स्टेडी स्टेट में था, जो मैंने पहले बताया था कि स्टेबल सिस्टम जिसे कहते हैं। लेकिन 2010 के बाद अगर हम देखना शुरू करेंगे तो एजुकेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी इंस्टीट्यूशन जो है उनमें डिग्रेडेशन हुआ है। जी, और इसी के लिए तो हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह अभी हाल ही में मतलब बिल पास किया गया ना। जी, एंड बाद में उसके बारे में जिक्र करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन मेरा यही मतलब एक बेसलाइन रहेगा, मैं अभी भी यही कहूंगा, एजुकेशन सिस्टम एक स्टेबल है। रही बात जो मैथ साइंस की, वो हमारी परसेप्शन है, एंड परसेप्शन से बेहतर अगर हम जो रियलिटी है उसको, फैक्ट्स है, उस पर बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके। सो एज हम फैक्ट्स पे भी बात करेंगे, देन जो पब्लिक के भी जो क्वेश्चन है हम उस पे भी बात करेंगे। सो शुभ्रांशु, मैं आप इसे मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो फैक्ट्स जो जरूर हैं, जरूर। जो स्कूल एजुकेशन को लेके जो अभी फिलहाल जो फैक्ट्स जो हैं, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा। ओके। तो शुभ्रांशु, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्कूल एजुकेशन जो है हमारे कंट्री में, आप उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स कुछ बताइए शॉर्ट में। ओके, मैं बताता हूँ आपको। जी, आप देख सकते हैं मेरी, जैसे अभी हम लोग, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने मिलकर ये पता किया था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर। एसर जी, की जो 2019 की रिपोर्ट है जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुआ है, उनका जो सर्वे ये कहता है, वो लोग लगभग 37,000 चिल्ड्रेन जो जिनका एज 4 से 8 साल का रहता है, वो लोग 26 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में और 24 स्टेट्स में उन लोगों ने अपना सर्वे किया। और उस सर्वे में वो लोग बच्चे से उसकी जो लिटरेसी स्किल्स है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो स्किल है, उसके बारे में पूछताछ करते हैं, पता करते हैं। जी, तो जिस चीज का आपने पूछा है उसका जवाब मैं यही कहूंगा कि हम अगर एसर के रिपोर्ट से शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस देश में 16%, 16% बच्चे वो हैं क्लास 1 के, जिनका जिनको लेके मतलब एसर ने अपना 26 डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट में अपना सर्वे किया, और उसमें से 40% बच्चे वो है जो सिर्फ अपने लेटर्स, जो इंग्लिश के अल्फाबेट से, वो पहचान नहीं पाते हैं। जी, पहला चीज। दूसरा चीज, स्कूल एजुकेशन में ये पता चला कि 41%, 40% बच्चे वो हैं जो सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही पहचान पाएंगे। जी, उसके बाद जब क्लास 2 पे आएंगे, क्लास 2 के 2/3 बच्चे, 2/3 बच्चे वो हैं जो सिर्फ एक टेक्स्ट, जो भी एक कोई कुछ अगर लिखा गया चीज हो उसको पढ़ सकते हैं। ओके। जी, जो कि उन्हें बहुत पहले से पढ़ लेना चाहिए था। रही बात क्लास 3 की, उस उनमें भी लगभग वही मोटा मोटी वही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है। और ये भी पता चलता है उस सर्वे से कि जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को
प्राइवेट स्कूल में सब कुछ ज्यादा ही बेटर रिसोर्सेस मिलती है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स को कम पेमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल के तुलना पे। ओके, ये मैं ऐसा रिपोर्ट बता रहा था। ऐसा जी रिपोर्ट में और 3 चीज मालूम पड़ता जी इस रिपोर्ट के तहत ये भी मालूम पड़ा कि जो गवर्नमेंट रन फैसिलिटीज है स्कूल्स की, वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। रही ओके, बात गर्ल्स की, वो लोग की स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा उन लोग का ज्यादा परसेंटेज गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में है। जी उसके साथ साथ जो बच्चे आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी स्कूल्स में, उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग है वो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पैरेलल में नहीं है। और यहीं पर से एक क्वेश्चन लाए होता है, क्वेश्चन होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट या आंगनवाड़ी स्कूल्स में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन बच्चों का लेवल हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लेवल में क्यों समान ना हो पाए। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल लेवल से ही एक सेम बैटलफील्ड क्यों नहीं दे पाते हैं। सुधांशु, I want to add something in it. इसमें आपने जो बोला कि जो दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है प्राइवेट और इसमें मैंने वही बोला था कि education is now all about money, and it's something, it's all about a business. So the people in private education systems, like there are multiple colleges or schools that give education for the students from a play school too. So they have made it into a business. So that's the reason the quality of government and the private are varying a lot, right? So that's what my point was. It's not about the education what the children are getting. It's totally, completely, it's into the money-minded things that the people want to earn money from the education. That's what the thing, what I said. या ओके। सो शुभ्रांशु, जरा हमें थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा जो आंगनवाड़ीज है जो आपने दे जैसा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट से, जरा आप उस पर थोड़ा कुछ थोड़ा लाइट कुछ डाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जैसा जी सोमनाथ ने बताया ना अभी, कि जो हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाती है प्राइवेट और गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, तो जी सोमनाथ के बात को लेके मैं एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे है 2015 का रिपोर्ट है, जी क्लास 10th बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम होता है, उन्हीं का सर्वे में ये पता चलता है कि इंग्लिश में 24% बच्चे वो हैं जो सिर्फ 35% मार्क स्कोर कर पाते हैं, और 61% बच्चे वो हैं जो सिर्फ 36 से 50% के बच्चे 50% मार्क स्कोर कर पाते हैं। और इसमें ताजुब करने वाली बात यह है कि 35% बच्चे वो हैं जो 0 मार्क से लेकर 35 मार्क तक रखते हैं, और मैथमेटिक्स में 50% बच्चे नहीं है जो 50 मार्क रख पाएंगे। और फिर इसके बाद अगर हम आके देखेंगे, क्लास 5 का जो स्टूडेंट है, 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अगर मिला भी देंगे हम, टोटल जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को अगर मिला भी जी देते हैं तो टोटल 34 होगा। क्लास 5 के स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 45% उनमें से हैं जो सिर्फ उनका कंप्रेंशन जो रीडिंग है वो अच्छे से कर पाएंगे, और सिर्फ 46% बच्चे वो हैं जो मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएंगे। ओके। सो और सोमनाथ, मैथ्स की बात हम अगर कहते हैं बोर्ड के लेवल में, तो जी तो सोमनाथ, अभी जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हाँ का बताइए बताइए। जैसा आपने सुना शुभ्रांशु से, नेशनल अचीवमेंट हम्म सर्वे का जो उन्होंने जो बताया है, तो आप हम्म जरा ये बताइए कि मतलब इसके रीजन क्या हो रहा है, कि क्यों इतना लो स्कोरिंग, इतना ऐसा जो सर्वे में इतना लो स्कोर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या लगता है ओके। आपको? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देवाशीष आपसे पूछूंगा पहले। जी तो फ्रॉम विच स्कूल यू आर फ्रॉम? जीपीएस प्राइवेट स्कूल, इट्स प्राइवेट। ओके, एंड सुधांशु, फ्रॉम विच स्कूल यू आर फ्रॉम? केंद्रीय विद्यालय। ओके, सो केंद्रीय विद्यालय इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, राइट? राइट। ओके, सो अपना इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहता था, पर इंग्लिश का वो सब्जेक्ट भी टीचर हिंदी में ही पढ़ाते थे, एम आई राइट? यस। सो अगर इस चीज में आपने जो बोला कि इंग्लिश में स्कोरिंग पॉइंट इतना लो होता था, एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस लाइक सेंट लॉरेंस एंड दीज कॉलेजेस, यू नो राइट, स्कूल्स एंड ऑल, उसमें
हर क्लास में इंग्लिश ही बोला जाता है, बच्चों को वो बचपन से इंग्लिश ही सिखाते हैं। सो पॉइंट्स तो वहाँ वेरी करेगा ही, क्योंकि उनका फीस भी ज्यादा है एंड ऑल। सो अगर बच्चों को हम लोग इंग्लिश का, आपने टॉपिक बोला कि इंग्लिश में स्कोरिंग इतना कम है एंड ऑल, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ाई हिंदी में कर रहे हैं, स्कूल में बातें हिंदी में हो रहा है, सब कुछ हिंदी में हो रहा है। तो ओके अगर वैसा है तो स्कोरिंग क्यों कम नहीं होगा, बताइए आपको क्या लगता है? जी, ठीक है, ये तो आपने इंग्लिश का बताया। मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का मेरे को लेट्स नहीं टॉक। लगता ओके, कि कोई लैंग्वेज बैरियर कुछ होता होगा। जी ना मैथमेटिक्स में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट मैं उसमें भी आपको एक सिंपल लॉजिक बता सकता हूँ। अपना केवी का ही ले ले। केवी में कभी कभी अपना हम लोग जब 11th-12th के आसपास आते हैं, देयर वे शॉर्टेज ऑफ लेक्चरर्स फॉर मैथ्स, क्योंकि कभी कभी उसमें पीजीटी और टीजीटी करके दो टाइप के टीचर्स रहते हैं। मैंने इनफैक्ट मेनी टाइम्स इन केंद्रीय विद्यालय आई हैव सीन की जो 10th के टीचर्स 12th को पढ़ाते हैं कभी कभी। तो ओके अगर ऐसे टाइप के पीजीटी और टीजीटी में दो फर्क किया गया है केवी जैसे स्कूल में, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें भी कभी कभी टीचर्स के लैक ऑफ टीचर्स, अगर मतलब 6th क्लास के 7th क्लास के टीचर्स अगर 12th के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है एजुकेशन का क्वालिटी उतना सही रहेगा या कम रहेगा? आपको क्या लगता है? जी शुभ्रांशु, आप बहुत बताइए। सही बात बोला सोमनाथ ने। जी हाँ, तो सोमनाथ सोमनाथ ने जो बताया उसका पूरा कंक्लूजन यही है कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स बेसिकली जो गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट रन फैसिलिटीज होती हैं स्कूल की, उसमें हम लोग लेस एफ्लुएंट फैकल्टीज प्रोवाइड दे पाते हैं। हम लोग हमारा जो फैकल्टी स्टैंडर्ड है, जो टीचिंग स्टैंडर्ड है, वो हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स की जो स्कूल होती है उसके साथ मैच नहीं कर पाते हैं। और इस चीज को सपोर्ट करता हुआ एक और चीज ये पता चलता है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत जो हम लोग के टाइम में या फिर शायद अभी भी चल रहा होगा, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन, जी जी वो भी अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उस चीज का मकसद ये था कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन यही हो गया कि पेपर पेंसिल में जिसने जितना मार्क लाया उसी के बेसिस पे हम लोग एग्जाम करवाते रहे, ट्रेडिशनल सिस्टम जो था। ओके इसी के ओके चलते ना आज का 10th का बच्चा वो अच्छे से मार्क स्कोर कर पाता है इंग्लिश में, और ना ही मैथमेटिक्स में वो ऑप्टिमम स्टैंडर्ड अचीव कर पाता है। ओके जो तो अगर मैं सीसी के ऊपर आऊं तो मैं सोमनाथ में आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब हमारे टीम ने भी एक बेसिक एक सर्वे जब किया था, तो हमें थोड़ा सा ये पता चला था कि मतलब बहुत सारे मन जैसे पब्लिक में से लोग थे, वो लोग एजुकेशन जो बाकी जो हायर एजुकेशन का जो वो जो मतलब जो इम्पैक्ट जो हायर एजुकेशन पे जो पड़ा है कुछ सालों में, वो लोग ये ब्लेम करते हैं कि जो सीसीई जो करिकुलम आया उसी के वजह से काफी डिग्रेडेशन हुआ है। तो आपके पॉइंट से सीसीई का क्या, आप उसको क्या रेटिंग, आप कितना क्या देंगे, थोड़ा बताएंगे? देखिए, व्हाट आई फील इज एक करिकुलम के वजह से हाँ हायर एजुकेशन में डिग्रेडेशन ऐसे होता नहीं है। ओके क्योंकि करिकुलम इट डजंट मैटर दैट मच फॉर आई फील, बट हमको अपग्रेड होते रहना चाहिए। द पॉइंट वेयर हम लोग जहां पर हम लोग अपग्रेड होना बंद कर दिए वहां पर प्रॉब्लम आने लगेंगे, क्योंकि आज तक इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स फॉलो द एंशिएंट मेथड्स, राइट? ओके अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोडैक कंपनी का नाम सुना है कोई? जी सुना है। हमारे यस। बचपन में जो कैमरा का रील बनाते थे, राइट? या आजकल वो कंपनी कहीं है, किसी को आइडिया भी है? नहीं है मार्केट में नहीं है। देखा जाए तो। नहीं है, राइट? जी क्यों? बिकॉज दे हैवंट अपडेटेड देमसेल्व्स। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है, टाइम के साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है, एंड जी आवर सही बात। एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एट ऑल अपडेटिंग। वो अपना वही पुराना तरीका पकड़ के, मतलब 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं और हम 90s का अगर एजुकेशन सिस्टम पकड़ के चलेंगे, इज इट हेल्पफुल टू दी फ्यूचर जनरेशन? व्हाट डू यू थिंक? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। ओके सो No, it's not quite helpful. Neither it is not beneficial for students also. या दैट्स ट्रू। या काफी अच्छा पॉइंट आपने रखा है सोमनाथ। देन देवाशीष जी एक और चीज है। जी जी देवाशीष सोमनाथ के पॉइंट में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जी कि
उन्होंने बोला एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने के बजाय हमारा सिस्टम ने ये किया कि एजुकेशन सिस्टम को मिड डे मील के साथ जोड़ दिया। जी। जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देना था वहां पे बच्चों को आप मिड डे मील के साथ जोड़ देते हैं, ताकि बच्चे मतलब 2 वक्त का खाने के लिए मिलेगा तभी स्कूल आएगा पढ़ने के लिए, नहीं तो स्कूल नहीं आने वाला पढ़ने के लिए। ओके, सो क्या आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं मिड डे मील को लेके, अगर कुछ तो प्लीज जरा दिखाएंगे। हाँ, जैसे मैं बताना चाहूंगा, कल का जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे जो स्टैटिस्टिक्स है जी। उसमें ये पता चलता है इस देश में इन आवर कंट्री 11,23,725 स्कूल्स रजिस्टर्ड है मिड डे मील के तहत। सोच जी। रहे हो कितना बड़ा, कितना लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, एंड जी। इन स्कूलों में अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। लेकिन इसमें जो astonishing fact is that only 2,428 स्कूल्स में मील सर्व किया गया, यानी सिर्फ उन्हीं स्कूल के बच्चों को खाना मिला जो बच्चे उन्हीं स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिला जो बच्चे खाने के लिए गए थे। बाकी स्कूल के बच्चों में तो कोई एजुकेशन नहीं मिला। जैसे फैक्ट तो यही कह रहा है ना कि जो 2000 स्कूल में मील सर्व किया गया वहां पे लगभग 2 लाख बच्चे हैं, लेकिन मील दिया जाता है 1,40,000 बच्चों को, लगभग 70%। और जी। हमें न्यूज में यही बोला जाता है कि हमने 70% बच्चों को खाने के लिए दे दिया गया, लेकिन नो वन रेज द क्वेश्चन अबाउट द रेस्ट 11 लाख स्कूल्स एंड द रेस्ट 12 करोड़ स्टूडेंट्स। ओके, सोमनाथ, मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि देखिए, जैसे शुभ्रांशु ने बताया कि मिड डे मील के साथ हम लोग एजुकेशन को लिंकअप करते हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मतलब कि अगर मिड डे मतलब कि क्या एक बच्चा जो खाने के लिए अगर जा रहा है स्कूल, तो उसका तो मतलब उस जगह पे एजुकेशन का कुछ वैल्यू कुछ रह रहा है? ओके, मैं इसमें आपको सिंपल इस चीज में मैं बताना चाहूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल जाते थे केवी या डीपीएस, हमारे तो वहाँ कोई मिड डे मील नहीं था, बट वी वेर गोइंग, राइट? क्योंकि फॉर अस एजुकेशन वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सो वी वर गोइंग स्कूल टू लर्न। बट क्योंकि हम पे कोई बर्डन नहीं था कि वी हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, और फैमिली financial condition was good enough to go, we can carry on with our education. That was the truth. But there are more than many families in the villages, or you can see in your locality too, that they can't even earn for their daily needs. So unke liye it gives a motivation, right? So for this point, midday meal is something, it's motivating them कि at least बच्चे को हम स्कूल भेजेंगे तो हम लोग ना खा पाए, बच्चे तो एक टाइम का खाना खा सकते हैं करके ना। many parents who are not cannot afford the schools and all, they are sending their kids to the schools and all. That's a positive point. I don't feel any bad in it. But yeah, as Sudhanshu mentioned that 30% लोग का 30% जो फूड गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लूप होल्स इन द गवर्नमेंट। तो वो अंदर ही अंदर क्या होता है, ईच एंड एवरीवन नोस कि क्या होता है, राइट? इट्स अबाउट दैट ओनली व्हाट आई फील। बट द मिड डे मील कॉन्सेप्ट इज समथिंग टू मोटिवेट द किड्स। मैं यहीं पे सोमनाथ को थोड़ा मतलब सही बताना चाहूंगा कि 30% वो है जो सिर्फ 2000 स्कूल में मिल दिया गया है। मेरा सवाल यही है कि 11 लाख स्कूल में नहीं मिल रहा है। 11 लाख के बजाय हम लोग सिर्फ 2000 स्कूल में ही खाना दे पा रहे हैं। That's because क्योंकि गवर्नमेंट से वो फंड्स आ रहे हैं, बट वो कहाँ जा रहे हैं? That's the question. The loophole is in the government. It's not about the I don't feel it's about the education and all. It's the loophole about the government and where the money is going. It's completely something the topic is going into a different way. कंप्लीटली हम गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते कि सिस्टम में थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है, हम उसके ऊपर भी कभी डिस्कस करेंगे। सो अभी जरा मैं आता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, स्कूल तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स का आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई ए क्लास रहता है, उसमें नो डाउट।
तो जब हम आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में आते हैं, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम जो भी हमारा मतलब जो एजुकेशन को अगर प्रमोट करना आता है तो हर कोई क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में ही रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सामने लेके आते हैं। तो मैं उसी पे मैं आऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सोमनाथ में आप ही से जानना चाहूंगा कि एज आपने भी काफी सर्वे किया, आपने भी कई बहुत जगह पे आपने आपने मतलब प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं एंड काफी आपका रीच भी अच्छा है, तो आप मेरे को जरा बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, मेरा लाइक आई हैव मेंशन, मेरा यूट्यूब में चैनल है। सो एक वीडियो के लिए मैं शूटिंग के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल में लाइक आई वाज गोइंग टू शूट देयर। या तो मैं वहां क्या नोटिस किया, लाइक there were no electricity in some schools and मतलब बच्चे अगर गर्मी में समर के टाइम पे अगर क्लासेस हो रहे, पंखे नहीं थे वहां पर। बट the people, many people were attending the schools. What I liked is most of the thing is the kids were attending the school. I don't know it's for education or for the midday meal or something, but the students were interested for the education. But the government cannot provide electricity or some basic needs. It was something like a blackboard and the students were sitting down on the floor. Like they can't even afford the benches for the students. This is the simply this can give you the clear idea of the infrastructure of the government schools and all. But इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाते हुए, लाइक वी कैन गो फॉर कंप्यूटर एजुकेशन, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। बट इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, लाइक रिसेंटली आंध्र प्रदेश में द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश हैड added a subject of English. The whole education system of Andhra Pradesh for government schools will be completely into English language. So what I see is people उसमें उसके अगेंस्ट में आने लगे। I didn't get a point, क्योंकि इंग्लिश अगर इतना इम्पोर्टेंट है आजकल के जमाने में, तो उसमें उन लोगों को क्या दिक्कत होने लगी, लाइक क्यों इंग्लिश में होने में दिक्कत क्या है? दिस शुड बी माय क्वेश्चन मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। The complete education system should be on the basis of English language. What it gives the people to learn more about the like coding and all, it will help them a lot actually. ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों का भी थोड़ा सा पॉइंट उधर ही है, तो मैं शुभ्रांशु आपसे मैं जानना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आप बताना चाहेंगे? I truly agree with Somnath. What he said is absolutely correct, and I really appreciate the government of Jagan Mohan Reddy for implementing English as a official education teaching methodology. But to the best of my knowledge, what I think is, if suppose I am a kid, and if I won't be provide enough optimum standard resources, then please tell me how could I achieve my target? This is because according to the Parliamentary Committee of 2019, what Somnath said is absolutely correct. 56% schools have no electricity, 57% schools have no playground, and 40% schools have even no boundary walls. The thing is, if the environment for education if the environment for education, we could not provide that environment for education, then we cannot expect a valuable education in that environment. And if I compare India with other developing nations, the people teacher ratio, the number of teacher to the number of students in India is on an average 46, whereas the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan of our country has recommended it should be 30 students per teacher. But in most of the states, like in Jharkhand, there is 68 students per teacher. In Bihar, 57 students per teacher. In Chhattisgarh, it is 45 students per teacher. In Gujarat, it is 34 students per teacher. The thing is, if we are not providing the quality resource to our students, then we cannot expect any more quality education from our students. See, if there is a teacher and he is teaching more than 100 students, then now you can tell me to individually how can that teacher be interactive with each and every student, and how can you get that output from each and every student? Okay. Okay, yeah. Sudhanshu, I would like to add one thing here. The thing is, like you have mentioned that about the infrastructure and all.
And yeah, but I like the point of yours, like you mentioned about teachers, huh? There are really lack of teachers in this country. That's the only reason behind it is about the earning and all, because most of the teachers would like to go for the professor roles for a private college or colleges or something, but very few number of teachers want to teach the kids and for the elementary schools and all. That's a true fact, I admit it. But about the infrastructure, what I feel in infrastructure is not at all the main point here, because if the students have that zeal to study, then they can complete their education under a flyover also. I have seen there many teachers who were teaching these students under a flyover or near the trees and all, but most of them are really brilliant. Hmm? The thing is about the teachers. Yeah, If yeah, you that have a is no, perfect that teacher is here, true. That is true. yeah, Yeah, please carry okay. on. Please. Yeah, okay. So let me just come to a I point agree over with there. Somnath that I agree with no. Please. हाँ, तो मैं इसी पॉइंट पे मैं ये आना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले सोमनाथ ने ही बोला कि हम 21st सेंचुरी में हैं एंड हम अगर इसी सिस्टम में अगर चलते रहेंगे तो हम compete नहीं कर पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन उनसे Yeah. वही है कि अगर हम 21st सेंचुरी में भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ब्रिज के नीचे भी बच्चे पढ़ के ब्रिलियंट हो सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ब्रिलियंट होते भी हैं बच्चे, बट आई थिंक अगर हमें अपने सिस्टम को अगर थोड़ा सा मींस थोड़ा एक्सेलेंट बनाना है तो आई थिंक हमें हर एक पॉइंट से हमें अपग्रेड होना जरूरी है। अगर हम लोग एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग अपग्रेड होते हैं तो आई थिंक उसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी हमें अपग्रेड होना जरूरी है। सो सोमनाथ आप जरा बताएंगे, थोड़ा कुछ बोलिए इसके बारे ओके, में। सो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ देवाशीष। सो लाइक अभी आप सोचिए, यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? या या ओके। सो अभी आपके पास यू आर अर्निंग गुड एंड यू हैव ए बिग हाउस एंड ऑल। सो अभी आपको एक कार खरीदना है। सो अभी आप एक मर्सिडीज या बड़ा कार खरीदने जो शो ऑफ के लिए होगा वो खरीदोगे, वो बेटर है, या फिर स्टिकिंग टू ए नॉर्मल कार लाइक मारुति सुजुकी वो बेटर है? आपको क्या लगता है? जी, मैं ऑब्वियसली मारुति सुजुकी पे स्टिक करूंगा क्योंकि इतना भी मेरे पास फाइनेंशियल क्यों आप कंडीशंस नहीं है। नहीं, इफ यू हैव दैट इनफ मनी टू हैव ए मर्सिडीज और ए बीएमडब्ल्यू, व्हाई डोंट यू गो फॉर ए बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज? अगर आपके पास होगा तो आप क्या करेंगे? जी, अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास उतना कैपेबिलिटी है कि मतलब कि मैं खरीदने के बाद भी मैं अपने कि मतलब मेरा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस रहेगा तो मैं जरूर खरीदूंगा मर्सिडीज और ऑडी। ओके ओके, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। कार तो दोनों सेम ही है, बिकॉज आपको लाइक वी आर नॉट ए रेसर्स टू रेस एंड ऑल, बस इट्स समथिंग लाइक ए शो ऑफ, राइट? उसी के लिए होगा, राइट? मर्सिडीज या फिर, पर काम तो दोनों कार का वही सेम है, मारुति सुजुकी में हो या बीएमडब्ल्यू में वो ही है। तो माय पॉइंट इज इट्स नॉट इट्स लाइबिलिटी। मैं क्या फील करता हूँ, वही कार का प्राइस दो महीनों के बाद कम हो जाएगा। जी तो दीज आर सम एक्सपेंसेस वी कैन अवॉइड दैट। कुछ एक्सपेंसेस को लाइक अवॉइड करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें से व्हाट आई फील, नॉर्मल बेसिक लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड ये दीज आर द बेसिक्स को छोड़ के कुछ है उसको अगर इग्नोर भी किया जाए, वी कैन गिव ए परफेक्ट एजुकेशन टू देम। It's all about what I feel the main, it's all about the teacher, because a good teacher can guide many more students for a good goal। मतलब एक अच्छा टीचर है वो 1000 बच्चों को भी ना एक परफेक्ट टारगेट के लिए गाइड कर सकता है, बट अगर टीचर ही अगर खराब है, कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए कोई फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ओके, सो आपका यह व्यू था एंड बिल्कुल सही बात। काफी सही व्यू था, मतलब मैं भी एग्री करता हूँ इस व्यू से। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक मिनिमल जितना जरूरी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक होना चाहिए। सो शुभ्रांशु, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो मिनिमल जितना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या रिपोर्ट्स के हिसाब से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या उतना है? नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद सरकार की जो सर्वे है वो खुद ये बताती है। जैसे सोमनाथ ने कहा टीचर, सही बात है कि अगर एक टीचर हो
और भले ही उसको उसके पास मतलब रिसोर्स ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, अगर उसने एक बच्चे को सही डायरेक्शन दिया तो बंदा जरूर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में क्लिक कर जाएगा, एंड वो होता भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, मैं जहाँ तक हमारे एजुकेशन का बात करूँ, स्कूल एजुकेशन बात करूँ, क्या हम लोग अपने स्कूल एजुकेशन में हम लोग के बच्चों को उतना रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं? वाकई हम करते हैं क्या? क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन की जो बजट होती है वो बाकी देश की एक लाइब्रेरी, एक पीएचडी स्कॉलर की जो अलाउंस के समान होती है। खुद हमारा सर्वे ये कहता है कि जो क्लास 1 से 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो लोग, अगर हम लोग एक जगह में अगर हम लोग एक जगह का अगर 100 बच्चों का हम रेशियो ले, तो 95% बच्चे अगर क्लास 1 से 5 तक पढ़ाई करते हैं, तो 6 से 8 तक वो 90% तक डिक्लाइन हो जाता है। फिर 9th से 10th तक वो 79% तक डिक्लाइन हो जाता है, और आखिरकार 12th तक पहुंचते पहुंचते वो होता है 51%। ओके सर, सोमनाथ, मैं तो आपसे, इससे ये प्रॉब्लम। क्या? जी जी जी, मैं सोमनाथ से ये पूछना जरूर चाहूंगा कि देखिए, जो सर्वे जो बता रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसा बता रहा है, जैसा शुभ्रांशु ने मेंशन किया कि फर्स्ट से फिफ्थ में 95% बच्चे एनरोल होते हैं, तो सिक्स से एट्थ में वो डिक्रीज होकर 90% हो जाते हैं। तो वो जो 5% ओके। का जो डिक्रीज हुआ है, क्या लगता है आपको? पब्लिकली आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके, पब्लिकली लाइक आपने जो बोला 6 से 9 उस टाइम पे बच्चों का जो डिक्रीज हो जाता है, अब उनका एज लगभग 13-14 ऐसे एज में आ जाते हैं, राइट? उस टाइम पे। जी ओके। राइट। सो अगर जस्ट थिंक लाइक सम जो लेबर क्लास लोग होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन सी देम लाइक वर्किंग इन आवर होम्स एंड ऑल। सो उस एज में आने के बाद बच्चों को वो लोग क्या करते हैं, दे रिमूव देम फ्रॉम द स्टडीज एंड पुट देम फॉर अदर वर्क्स, ताकि वो डे टू डे अर्न कर सके, ताकि कुछ अमाउंट मतलब ऐड हो सकता है उनके अर्निंग में पर होल ईयर उसमें ऐड हो सकता है, इसलिए दे डू दैट। सो उस केस में एक कुछ होता है, एंड बाकी दूसरा केस होता है कि लाइक मोस्ट ऑफ दिस आई गेस दिस इज मेन रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि इट्स 5% चेंज इसी के वजह से आ सकता है, सही व्हाट बात आई है। फील। बहुत, या दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि जो 12 से 13 साल के बच्चे होते हैं वो लगभग लगभग 8th स्टैंडर्ड के होते हैं, एंड उनको उनके फैमिली का जो बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, दे गो टू आउटसाइड टू अर्न समथिंग एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली। एंड यही चीज तो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो दैट्स ट्रू। 8,000 पर महीने पर साल के दर पे काम करते हैं। जी। ओके सो ट्रू। मैं इसके जो फर्दर इस एक और मैं पॉइंट पे अभी मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने हमारे स्कीम एक निकाला था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पहले मैं सोमनाथ आपसे ही पूछना थोड़ा चाहूंगा कि आप उसके ऊपर जरा सा कुछ कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डालिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, वो अभी फिलहाल करंट अभी तक आपको क्या लग रहा है कि वो कितना मतलब कितना फ्रूटफुल हुआ है, कि वो सच में अप्लाई हुआ भी है, उससे कुछ फायदा हुआ भी है? थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालिए आप उसके ऊपर। ओके, आई वुड से फायदा हुआ है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो गवर्नमेंट ने बनाया था, इट्स फॉर एक्चुअली मोर ओवर फॉर द वुमेन एजुकेशन, लाइक लड़कियां आगे बढ़े, उनको भी सेम इक्वालिटी मिले जैसे लड़कों की तरह वो पढ़ सके एंड ऑल। क्योंकि बीच में ऐसा टाइम था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आज तक ढंग का वॉशरूम्स नहीं है, so the girls are not able to go to the colleges because of those reasons too. So अगर इस चीज में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर गवर्नमेंट काम करे, तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये जो है स्कीम, ये पक्का बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। एंड इसके ऊपर एंड दे हैव गिवन सम अलाउंस टू दैट फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक्चुअली लोगों तक ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं, आई हैव ए क्लियर डाउट ऑन इट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग ये एक्चुअली रूरल एरियाज में ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, बट व्हाट आई सी इज उतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं है, दैट्स द थिंग। ओके
सुब्रांशु, एज पर फैक्ट्स सर्वे, आपका सर्वे क्या बताता है? सर्वे सोमनाथ ने जो बताया वही सर्वे भी कह रहा है। जी। सीधी अच्छा, बात है एक ही बात है। कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो शुरू कर दिया, लेकिन लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना आज भी हम लोग प्रॉपर एक्सेस टू टॉयलेट दे पाते हैं, ना आज भी हम लोग प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर पाते हैं। जी। तो दैट्स ट्रू। जी जी। तो उसके बाद मैं आता हूँ कि जो 10th के बाद मतलब कई जगह पे ऐसा रहता है कि जो 11th 12th रहता है, तो बहुत जगह पे ऐसा रहता है कि 10th के बाद बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो क्या ओके है उसके ऊपर आपका मतलब क्या व्यू क्या है? क्यों ड्रॉप आउट जो हो जाते, क्यों? कुछ रीजन ओके। थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फैमिली अर्निंग, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, और दूसरा चीज एजुकेशन इन आवर मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक एवरीवन हैज देयर ओन ड्रीम्स. So after 10th and all, the people start to work on their dreams, क्योंकि हमको एक उस एज में we get an idea कि हमको क्या करना चाहिए. Our like हमको एक आइडिया आता है this should be our field or not करके. So most of the probably what do I feel is इसका बहुत multiple options हो सकते हैं. It might be under family pressure of or financial conditions, or it might be about choosing your dreams. If like if someone wants to be pursue their career into music or cricket or something like that, they choose those and they avoid the education there. So ऐसे multiple reasons हो सकते हैं. ओके। शुभ्रांशु, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा मतलब एक पॉइंट जो हम लोग को जो मीन्स डिस्कस करना चाहिए कि एजुकेशन को लेके हमारा जो जीडीपी का जो स्टेटस है, थोड़ा बताएंगे? It is still struggling around 4%. ओके, तो जरा हिस्ट्री बताइए एंड हम लोग उससे And the इम्प्रूव। thing is, जी जी, जरा ये बताइए, हिस्ट्री बताइए कि no, हम। we can improve on our we we can improve on our GDP, and we will speak about this in future about when we will discuss on a national education policy. ओके फाइन। सो तो ठीक है, तो मैं It would be अभी। much better. It would be much better if we discuss those things during national education policy. At the end, I have two things to say. Is that first thing which I need to say is that in our primary education system, the school education system, for primary classes we have 8.5 lakh schools. ओके। For upper primary classes, my first question comes here is that why it is decreased to only 4 lakh schools. And my second question is, at secondary stage, why it has been declined to only 1.5 lakh schools, 1.35 lakh schools. And at senior Sudhanshu, this figure second, is about government schools or private schools? it's a overall data of total primary education survey. Okay, both the government and private, both schools, right? Yeah. Yeah. The Okay. more crucial thing to know is that in senior secondary level, we have only 1,09,000 schools. Please keep this in Okay. mind. And today in our nation, where 60% population is youth, and out of this 60%, if more than 60% would be either unemployed or have not completed higher education or senior secondary education, isn't that a matter of concern for us? This is my last line Okay. of the day. So these three questions, I would like to answer these three questions in with a small example. So Sudhanshu, if in future you had a kid, so would you like your kid to study in a government school, or if when well-renowned private school you will join them? It's a question for I will you. definitely go for government school. Government school for I will sure, go right? for government school. Government or Yes. central government? Any clarification like Kendra Vidyalaya or Navodaya, those type of schools, It's a or Anganwadi schools? those are all basically state-run facilities. BTech KB or Yeah. Navodaya Will you Vidyalaya. go for a Anganwadi school?
No, definitely No, not. right? Okay. So the question here, why the schools are shutting down? Huh? The main reason here is no one of the people want to send their children to Anganwadi schools or something, these type of schools. So, and everyone, in fact, I can say that I have seen some of the workers, like when I was working with one of a renowned company. So what I saw is the people who were like the people like the sweepers and all, they also want their children to go to the private school, not to a government school. That's the main reason here why the government schools are being shuttered. So the main reason for shutting down the government schools is the reason, and the ratio is falling down only because of these reasons. So that the most of the people are choosing private schools. That's the only reason. And when you come for the question like why the most of the youth are unemployed, here I would basically give this it's the only fault of the private colleges. You know why? If you just imagine, if you have completed your engineering in a IIT or NIT, will you be a jobless? What do you think, Yeah, you can be Sudhanshu? jobless in Yeah, today's but the scenario. In ratio today's, will be no, 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 I'm no. saying, The ratio will be how much? What do you think? The ratio will be comparing to a IIT and NIT to a normal engineering college in your locality. What do you think? The ratio of definitely unemployment is the more at which place? in a normal college other than IIT and IT. Yeah. So now my question is, if the people who are really eligible to do engineering or who have the capability to do engineering or who have that caliber, if they only pursue the engineering, then there will be no matter of these things like unemployment and all. If like we have a JEE NEET, JEE mains exam, right? Once if each and every student has to appear JEE mains and only there will be limited number of colleges and the ranks will be there. So within those people only can join the engineering. Then the rest of the people who are not able to clear the JEE mains and all, that simply shows that they don't have that caliber to become a good engineer, right? So in that case, they have to choose some other field. The only reason for unemployment, what I feel is each and every parents in these nowadays want their kids to be engineer or a doctor or something into a higher profession. So they what they do by giving the multiple donations or with any enormous colleges, like in the every villages there are nowadays there is a engineering college. They are making their children join there, and after that they are sending them to cities like Bangalore, Hyderabad and all to get a job. So this is the main reason for unemployment. If the only people who have that caliber to do something, if they only pursue those things, then the situation will be in a different hand. Okay, so That's the fine. reason of In addition to unemployment. What do I feel? Yeah, but I in addition to this, one more thing I also like to add is that in parallel to IIT and IT, we should also increase the teaching standard of other colleges too. yeah, I think It's not about teaching talent of other colleges. Sudhanshu, I will give you a simple basic idea on it. Like there are many as a HR, I had an idea. Like most of the people who apply for the jobs are freshers. So what do I feel is there are no if you are an engineer, so CSIT, the half of the mechanical people and civil people and electronics people are working as a developers. You know that the only Yeah, reason if and if you don't have the government cannot provide the students in the mechanical branches and all jobs, they don't have enough jobs, then we should shut down the mechanical branch only, right? But no, it's not working okay. like that. There are So a mechanical branch in every fucking colleges, right? yeah, okay, fine. So I would just Yeah, let you know that's true. that we are deviating from the topic. It's the part of the higher Yeah, education which is going to be, as I earlier I told that it is going to be a series. So I think in the end, now we are concluding. So Somnath, okay. I want to know from you that you just conclude in your version that how can we improve the school education in the present scenario of the whatever is going on.
present scenario, what I feel as the COVID and all things are running, the government should take a good initiative of providing online classes to the students with a good teachers. Like if the teacher is good, what do I feel is, if there is a best teacher, then the students are definitely going to be best. Because it's from my own experience. When I was going to school, I met a teacher in my 8th standard, I guess. Till that time, I was a poor student in maths. I was not able to solve a single math question. I have taken many more tuitions also, but once I start learning from that teacher, then I have like my maths was brilliantly improved. Actually, that's the reason I believe that if you have a good teachers, the students are going to be brilliant. Okay, so Subhranshu, Government in should work the on those things actually. so Subhranshu, in the conclusion, what you would like to say, that what should be the changes in the school education and what should be the improvements? What government or what you can do in your version? With the best of my knowledge, I will say only one thing, that most of the students should be encouraged and enrolled in the school education system. That's the first thing. Because unless and until you take the first step into the school environment, you cannot get the proper education system. And one more thing is that our school education should not be relied upon midday meal. It should be relied upon only quality teachers. That's it. Okay, so Somnath, I'm going to ask you the last question. Mhm. So Yeah. if means just leave that, what government what government should do and what government should have done till now. I just want to know from you that if you have the authority or you have some sort of power like these things, so how can we improve the school Hmm. education and in the what fields you can do it? First of all, I want to highlight a point, like as he had Sudhanshu has mentioned that meals and all. Yeah, it might be not the important part, but for a labor class people, I feel that meals is something that's a motivative thing. So I would continue those things as it's going on, but I would really work on the education quality first of all, quality of the education, like the teachers and all. And apart from that, I'd like to introduce the main thing here, like if I would like to choose, like there should be a committee that people who can check that is the people who are the students who are studying there are really interested for the studies or something else. That's the main thing. Because Yeah, if I start identify the talents of the students, then the future generation will be in a different hands actually. yeah, I I would work Yeah, on strongly these those agree. things. things are part of those things are also mentioned in new education policy. We will discuss that. Yeah, that's Yeah, true. That was the thing I was coming up to. yeah. So fine, guys. It was a very nice discussion with you. So in the conclusion, I would just like to say that in the my version, in the my point, I think that the training of the teachers should be done in a very proper manner, and Yeah. they should be assessed periodically, that whether they are fit for the, because I think that the teachers training is also necessary. So in the conclusion, so it's the it's the all about the school education system. So whatever you like, whatever, if you have any sort of doubts, any sort of queries, you can just comment it down below in our video. And we have Somnath Acharya, who also runs a YouTube channel known as Triplicate Films. So go like and subscribe also his channel for the good and best contents. And stay tuned with EdStar for the more motivating, more factual contents, because in EdStar we only try to make sure that the public should get the factual points, the fact-based things. Because right now in the digitalized world, we get very much of the fake news and the fake rumors also. So EdStar has its only one goal, to make sure that people should get to know the actual reason behind each and every scenario. So it's Devashish Mahapatra signing off. Thank you.